Good morning, students. Today our topic is remuneration, which includes the salary or commission to the partners. So, let me start. Remuneration, which includes salary or commission to the partners, is allowed only to the partners who are looking after the business of the firm. Okay, all those partners who are working in the partnership firm, they are all given the remuneration only if it is stated in the partnership deed. But if there is no partnership deed, or the partnership deed exists but it doesn't provide for allowing the salary or commission, then it will not be allowed. तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि रेमुनरेशन देनी है, then the partners will be given the remuneration. If the partnership doesn't allow, if there is partnership deed but it doesn't allow, or if there is no partnership deed, then no remuneration will be given. So remuneration includes both salary and commission. Done. Salary or commission will be given only if it is allowed in the partnership deed. But if there is no partnership deed, then no salary or remuneration will be given. And second, if there is partnership deed but it doesn't provide, then also no remuneration will be given to the partners. So the salary or commission to the partners is an appropriation of profit. So whatever the salary or commission we will give to the partners, it will always be a appropriation of profits. Means it is not a charge against profit. What does it means? It means that the salary or commission to partners is allowed only if the partnership deed allows it, and also the firm earns the profit during the year. Listen it carefully. Appropriation of profits means the salary or commission to the partners is allowed only if the deed allows it and the firm is earning profits during the year. Fine. That is why we say that the remuneration or commission, remuneration means salary or commission, is always an appropriation of profits, and it is allowed only if the partnership deed allows it. And even if the partnership deed is there but it doesn't allow, then no remuneration will be given to the partners. And secondly, the firm should be earning the profits. Fine. So the salary payable to each partner is normally as it is the amount given to partners. Let the salary of A be 20,000, then 20,000 will be given. Let the salary of B is 30,000, then 30,000 will be given. But the term commission, salary will be the same as the amount. जितना amount होगा उतनी salary मिल जाएगी. But the word commission is stated as a percentage of profit. ठीक है जी. And is allowed to the partners, means the commission which we give to the partners is also in two parts. Is also given in two parts. The first part is commission as a percentage of net profits before charging commission, and the commission as a percentage of net profits after charging commission. मतलब कि वो profits का proportion, that commission which is given as a percentage of net profit before giving any commission.
अभी तक कोई कमीशन दिया नहीं, जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट है उसका डायरेक्ट परसेंटेज है। लेकिन हेयर इट मीन्स अ कमीशन इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स, जिसमें से सारे कमीशन माइनस करके जितना बनता है उसका उतना परसेंट हम देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इन दोनों सिचुएशंस में। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये कमीशन कैलकुलेट होता है, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होता है हमारे पास। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन into rate of commission divide by 100, and the commission which is calculated as a percentage of net profit after charging commission, then it is calculated as net profit or distributable profit after commission, after, no, here we will be writing before commission, वही सभी before commission के, वही net profits into rate of commission divide by 100 plus rate of commission. Write it down. So we will be doing a question. To explain this, I will do a question. So come to your book. On we have the page and question number 27. Question number 27. Read the question carefully. Firstly, you have to read it carefully. So, now let me start doing our question. As per this question, X and Y are the two partners, and to two partners, and X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month and a commission of 10% of the net profit after partner's salary but before charging commission. But Y is entitled to a salary of rupees 25,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging all commission and net profits and partner's salary. So the net profits before providing all the salaries and commission for the year ended was rupees 4,20,000. We have to show the distribution of profits. So let's start our question. Question number 27. Start making the profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. Credit, debit. Particulars,
amount in rupees, particulars, amount rupees. So we have the net profits by profit and loss account, that is rupees 4,20,000. And here we will pass the entry of to partners' salary. X capital account, Y. X को कितनी सैलरी मिलनी थी? 10,000 पर मंथ. 10,000 into 12, that become 1,20,000. And Y will be given a salary of rupees 25,000 per annum. So the total of these both is 1,45,000. Yes? Then we have to distribute the commission. To commission, commission given to X and to Y. So X को कैसे कमीशन मिलना था? At the rate of 10% of the net profits after partner's salary, but before charging any commission. अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो हमारा सीधा रेट है रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे एक्स की सैलरी, एक्स को कमीशन कितना मिलेगा? 10% मिलेगा ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी. पार्टनर्स की सैलरी दे के जितना उसके पास नेट प्रॉफिट बचा उसका 10% जो है वो एक्स का कमीशन है. तो कमीशन हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं. कमीशन टू एक्स, तो 4,20,000 में से पार्टनर्स की सैलरी माइनस की, माइनस 1,20,000 माइनस 25,000, देन वी गेट 2,75,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमारा रेट जो है 10% है. देन वी गेट द अमाउंट ऑफ 27500. तो x का कमीशन कितना हो गया? 27500. So and commission to Y, that is at a rate of 10% of the net profit after charging all salaries and all commission. तो आफ्टर कमीशन है, आफ्टर वाला पॉइंट है, तो हमारे पास क्या रेशियो में आ जाएगा? इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो हमारे फॉर्मूले में ये चीज़ जो है वो मेन होती है. अगर तो हमारे पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन आ जाता है. और अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 हो जाता है. सो कमीशन ऑफ वाई विल बी 4,20,000 माइनस सैलरी, जितनी हमने सैलरी दी है. एंड दे आर सेइंग कि जितना भी कमीशन है वो भी माइनस करना है आफ्टर ऑल कमीशन. तो हम ये भी माइनस कर देंगे, माइनस 27500. तो हमारे पास ये बच गया 247500. तो रेट ऑफ कमीशन कितना? इंटू 10%. तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 110 होगा, क्योंकि वो आफ्टर ऑल कमीशंस है. तो इसके मतलब है कि इसके अंदर ये वाला कमीशन जो हमें पता नहीं है वो भी इंक्लूडेड है. तो वही 10% की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं बाय 110. तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इंटू 10 डिवाइड बाय 110 इक्वल्स टू 22500. तो हमारे पास y का कमीशन आ गया 22500.
तो वी हैव अ टोटल ऑफ दीज बोथ, तो हमारे पास इन दोनों का टोटल बन गया +2750, तो ये हमारे पास हो गया 50,000। तो और इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है, तो हमारे पास 4,20,000 थे, उसमें से माइनस हुए 14,500 एंड इसमें से माइनस हुआ 50,000, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई 225,000। ठीक है बच्चों, I'm running short of space. Please make it neat and clean in your notebooks. तो जितना हमारा नेट प्रॉफिट बच गया तो वो कहाँ पे चले जाएगा, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। तो हमारे पास प्रॉफिट्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, as we have not given the ratio, so we will distribute the partners profit and or ratio, profit or loss in the ratio of 1:1. so it is our rule, अगर हमारे पास रेशियो ना दी हो तो हम पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम 225,000 डिवाइड बाय 2, we will get the share of both partners 112500 each. Fine. So we are done with this question. Please do it very neat and clean in your notebook. So इस क्वेश्चन में मेन जो पॉइंट है वो कमीशन का ही है। तो कमीशन जो हमारी सैलरी है वो तो एज पर डायरेक्टली जितना अमाउंट होता है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन द मेन थिंग इज वी हैव द कमीशन। इफ़ द कमीशन इज़ गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, कमीशन है हमेशा ऐसे दिया होता है कि हम 10% दे देंगे तुम्हारा जितना नेट प्रॉफिट बनता है। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो अगर डायरेक्टली है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन अगर वो कहेंगे हम तुम्हें कमीशन देंगे लेकिन तुम्हारे पास जितना भी नेट प्रॉफिट बचता है आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल द कमीशन, सारे कमीशन माइनस करके तुम्हारे पास जितना नेट प्रॉफिट बनता है उसका हम 10% तुम्हें कमीशन देंगे, तो वहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी रेशो बन जाती है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कमीशन सॉरी, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। Fine students, so now we are going to do our next topic, which is related to calculation of interest on partners drawing. Our topic is calculation of interest on partners drawing. It is also one of the most important topic. This chapter is quite important for your syllabus. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे and we will do the very first part of this topic. हाँ जी, सबसे पहले ड्राइंग के ऊपर पार्टनर जो विड्रॉइंग करेगा, पार्टनर जो अमाउंट ड्रॉ करेगा, ड्राइंग मीन्स फॉर पर्सनल यूजर्स, अ पार्टनर विड्रॉ इन कैश और काइंड एनी अमाउंट, सो दैट ड्राइंग may be out of the capital. A partner can withdraw out of the capital as well as a partner can withdraw out of the profits. हमने किया था कि पार्टनर्स जो है वो कैपिटल में से ड्राइंग कर लेता है, जितना वो कैपिटल लेके आया है वो ड्राइंग माइनस कर देता है अपना। तो हम पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाते होते थे, तो जैसे हमने कल किया था, 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज होती हैं, या तो एडिशन होती है या फिर विड्रॉल होती है। वो जो विड्रॉल कैपिटल में से की जाती है उसे कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी।
और जो विड्रॉल हम अपने प्रॉफिट्स, पार्टनर को पता है कि उसका इस ईयर में इतना शेयर बनता है, और जो विड्रॉल वो अपने प्रॉफिट में से करता है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मीन्स द ड्रॉइंग बाय द पार्टनर्स अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। जितना उसे एक्सपेक्ट होता है कि हमारे इस ईयर में इतने प्रॉफिट्स हो जाएंगे, उसमें से जो विड्रॉल किया जाता है उसे कहते हैं विड्रॉइंग और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। सो द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर, ड्रॉइंग by a partner is also again divided into two parts. Drawing can be irregular or it can be a regular drawing. Irregular drawing means हम सेम अमाउंट इरेगुलर इंटरवल्स पे ड्रॉ कर रहे हैं। मीन्स सपोज 10,000 है, कभी हम 1 महीने बाद आ जाते हैं, हमें इतना रिड्यूस करना है, और कभी हम 3 महीने बाद कह देते हैं, कभी हम 10 दिन बाद ही कह देते हैं। इट कैन बी द सेम अमाउंट और इट कैन बी डिफरेंट अमाउंट। लेकिन रेगुलर ड्राइंग मीन्स हम एक सेम अमाउंट एक सेम इंटरवल पे हमारी कैपिटल में से या फिर हमारे पार्टनर्स अपने शेयर में से रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, एक पार्टनर हर महीने 2,000 रिड्यूस करवा लेते हैं। सो दैट इज रेगुलर ड्राइंग। सो देयर आर 2 methods of calculating interest on drawing. So there are 2 methods of calculating the interest on drawing. One is the product method and the another one is the average period method. The method which is used to calculate the drawings which are made of same amount at regular intervals, that method is the average period method. Average period method. But a method which is used to calculate the irregular drawings is known as product method. A product method is also classified in 2 parts. One is the simple method and the another one is the product method. So here we have an example. एग्जाम्पल में सबसे पहले हम सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं। Suppose a person withdraws an amount of 2,000 on 1 May. Then he withdraws 5,000 on 1 August. Then 2,000 on 30th September. Then 6,000 on 31st January and 2,000 on 31st March. So total उसकी ड्राइंग कितनी हुई? 5 + 6 11, 11 + 6 17। तो 17,000 उसने विड्रॉ करवा लिए डिफरेंट टाइम पीरियड पे। तो सबसे पहले सिंपल मेथड में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए नंबर ऑफ मंथ्स कितने रह गए हमारे रिमेनिंग अप टू
31 मार्च, हमारा 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो हम 31 मार्च तक देखेंगे कि हमारे कितने मंथ्स रह गए। तो 1 मई को उसने विड्रॉ किया, तो हमारे पास कितने महीने रह गए, अप्रैल का माइनस करके हमारे पास 11 मंथ्स रह गए। ऐसे ही अगस्त में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने माइनस करके हमारे पास 8 महीने रह गए। सितंबर, 30 सितंबर मीन्स 30 सितंबर भी इंक्लूड है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो रह गए हमारे पास 6 महीने। 31 जनवरी, जनवरी के बाद 2 महीने पड़े हैं, फेब और मार्च, तो सीधा 2 महीने आ गए। और 31 मार्च मतलब एक भी दिन नहीं है, तो हमारे पास 0 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे @ 15%। तो एग्जाम्पल, तो इसी एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको पहले वाला कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 2000 इंटू 15% इंटू 11/12। ऐसे ही हम अकेले अकेले का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे सभी के कैलकुलेशंस ऐड होके यहाँ पे जो टोटल आएगा वो ए ले लेते हैं हम एक बार के लिए समझने के लिए। तो हमारे पास ये जो आंसर होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। और अगर यही आंसर हम प्रोडक्ट मेथड से निकालें, तो हमारे पास डेट्स भी यही आ गई और अमाउंट भी ये आ गई। तो डेट को हम ए मान लेंगे और अमाउंट को हम मान लेंगे बी, और मंथ्स को हम मान लेंगे सी। तो यहाँ पे हम डी कैलकुलेट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम विल द केस, जैसे 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000, मंथ्स ऑल्सो 8, 11, 8, 6, 2, 0। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000 and 0, तो टोटल विल बी 86,000। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। हम एक एवरेज लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ्स के साथ कैलकुलेट कर रखा था, या फिर अगर ये डेज में कैलकुलेट करना है तो इंटू 1 डिवाइड बाय 365 डेज। इसको बोलते हैं डी को प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट विल बी टोटल 86,000, रेट कितना है हमारे पास 15% इंटू 1 डिवाइड बाय 12, क्योंकि हम मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बन गया हमारे पास 86,000 इंटू 15% डिवाइड बाय 12, वी गेट 1075. So whatever the answer from this B product interest on drawing will be same as the answer we get over here by simple method. ठीक है, तो ये हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास एक इरेगुलर ड्राइंग्स हो, एंड यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला है, सो वी विल हाईलाइट इट. So the next topic we will do in tomorrow class. So please revise it and make proper notes. See you tomorrow. Thank you.